So in the previous class we were sketching the curves of y equals to modulus of fx. And how to sketch this type of curves? Modulus of fx is equals to fx when fx is greater than equals to 0, and it is minus of fx when fx is less than equals to 0. So it remains fx when fx is greater than equals to 0. If it is positive, will remain fx, and if fx is less than equals to 0, in that case it becomes minus of fx, and minus of fx is nothing but the image of the given curve in the x-axis that we have discussed. And in the previous class we have sketched the curve of modulus of sin x. Also we have observed that it is a periodic function with period pi. Modulus of sin x with having a range of 0 to 1. Likewise we plot the curve of modulus of cos x. When we say modulus of cos x, it is clearly cos x. Basic definition of modulus function. Modulus of cos x is cos x when cos x is greater than equals to 0, and it is minus of cos x when cos x is less than equals to 0. So this interval में cos x positive है. If cos x is greater than equals to 0 will remain cos x, and if cos x is less than equals to 0 will become minus of cos x. Cos x being an even function symmetric about y. That's the curve of cos x having a range of minus 1 to 1. We want to sketch the modulus of cos x, तो इसी में sketch करेंगे हम. That's the cos x. When cos x is greater than equals to 0 will remain cos x only. तो जिस इंटरवल में cos x पॉजिटिव है, जैसा कर्व है as it is रहेगा, and if cos x is less than equals to 0 it will become minus of cos x, and minus of cos x, minus of fx is nothing but the image of the given curve fx in the x axis. X axis में हम इमेज ले लेते हैं उसकी, ठीक है. So this is pi by 2 to 3 pi by 2, that interval is there जिसमें cos x नेगेटिव दिख रहा है आपको, image of that curve in the x axis. डायरेक्ट स्केच कर रहा हूं मैं. minus pi by 2 to minus 3 pi by 2 या minus 3 pi by 2 to minus pi by 2, that cos x is negative will become positive image of that function in the x axis. That's the curve of modulus of cos x. The modulus of cos x function है, range of that function is clearly 0 to 1. Yes, it is a periodic function, and if we discuss the period of that function, ये required है जितने भी facts हम बात कर रहे हैं. It's a periodic function and it's a periodic function with period. ये minus pi by 2 से pi by 2 में एक लूप इसका बन रहा है, फिर pi by 2 से 3 pi by 2. Clearly that period of that function is pi. तो आसानी से बना लेते हैं. Minus of fx image of that function in the x axis. If I sketch the curve of modulus of cosec x, so modulus of cosec x, sin x प्लॉट किया, cos x प्लॉट किया, sin x का रेसिप्रोकल cosec x प्लॉट करते हैं. cosec x तो ऑलरेडी हम प्लॉट कर चुके हैं. विल बी प्लॉटिंग द कर्व ऑफ मॉडुलस ऑफ cosec x. मॉडुलस ऑफ cosec x विल रिमेन cosec x व्हेन cosec x इज पॉजिटिव, and it is minus of cosec x when cosec x is less than equals to 0. बस इसी बात को यूज करेंगे. cosec x का कर्व बनाना है. cosec x is 1 by sin x. डोमेन ऑफ cosec x क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग डोमेन ऑफ cosec x, ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग n पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो विल बी स्केचिंग द लाइंस पैरेलल टू द y एक्सिस. आप जानते हैं
So modulus of cosec x, like this. पाई से 2 पाई में cosec x will remain negative, लेकिन अभी तो it will become positive image of that curve in the x axis. What are those points? पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 आसानी से बना सकते हैं आप बिना कोई दिक्कत के. That's the function modulus of cosec x. और modulus of cosec x अगर आप देखते हैं, range of that function what is the range of that function? 1 to infinity. And if I ask you the period of that function, that is clearly pi. Exactly on the similar lines, we can plot the curve of sec x, which is going to be sec x in the interval of sec x being positive. जब sec x positive है, then sec x only, minus of sec x when sec x less than equals to 0. sec x का डोमेन क्या है? तो sec x का डोमेन है sec x is 1 by cos x, all real values excluding odd multiple of pi by 2. So we'll be plotting the straight lines parallel to y axis at odd multiple of pi by 2. स्केच करने के वेज जो मैंने आपको समझाया थे ड्यूरिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एग्जैक्टली. और फास्ट पेस पे हम बात कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अब आप लोगों के लिए. sec x प्लॉट कर सकते हैं, जो पॉजिटिव है जैसा बनता है वैसे ही बनेगा, और जहां नेगेटिव है माइनस ऑफ एफ एक्स इमेज ऑफ दैट कर्व इन द एक्स एक्सिस. कुछ ऐसा. ना अलॉन्ग विद द वैल्यूज अपना बनना चाहिए, बात समझ में आना चाहिए कि वैल्यूज के अकॉर्डिंग कर्व बने. That is modulus of sec x. Again, clearly a periodic function with period pi, and range of modulus of sec x जब मैं लिखूंगा that is going to be 1 comma infinity. That's this function. ठीक है ना. अच्छा एक और बात देखिए, ये चारों फंक्शन अभी तक फिलहाल हमने स्केच किए, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, मॉडुलस ऑफ सेक एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉसेक एक्स. ये चारों फंक्शन इवन फंक्शन से या ऑड फंक्शन से? तो in place of x if I keep minus x, although sin of minus theta is minus sin theta, but modulus sign is there, will remain as it is. ये चारों functions even functions in fact remaining two functions, modulus of tan x as well as modulus of cot x are also even functions, and even function that means symmetric about y axis के about symmetric है. चारों functions को देख लीजिए, और remaining दोनों functions जो हम sketch करने वाले हैं, modulus of tan x as well as modulus of cot x. All 6 functions are even functions which are symmetric about y axis, ठीक है ना. and all 6 functions are periodic functions with period pi. Now look for y equals to modulus of tan x. देखो मैं तो केवल वैसे ही समझा देता हूँ, बात हो जाती है, लेकिन हम डिटेल में देख लें एक बार सारे कर्व्स तो ठीक रहेगा. रिक्वायर्ड हैं सारे फंक्शंस, रिक्वायर्ड हैं.
modulus of 10x, when we say modulus of 10x, it is 10x when 10x is greater than equals to 0, and it is minus of 10x when 10x is negative. सबसे पहले तो 10x की प्रॉपर स्केचिंग होना चाहिए, तभी आगे की बात हो पाती है. तो 10x is nothing but sin x by cos x. Sin x by cos x, all real values excluding sin x by cos x. डोमेन क्या लिखोगे आप 10x का? ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, जहां cos x 0 बन रहा है. ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. लाइंस स्केच कर लें y एक्सिस के पैरेलल. देखिएगा, जिस इंटरवल में 10x पॉजिटिव है, जैसा कर्व था वैसे ही रहेगा. 0 से पाई बाय 2 का इंटरवल, दैट फंक्शन इज पॉजिटिव, इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. इंक्रीजिंग फंक्शन है, विल रिमेन एज इट इज. राइट, जिस इंटरवल में पॉजिटिव है विल रिमेन एज इट इज. लेकिन क्या होगा, जहां नेगेटिव है, माइनस पाई बाय 2 टू 0, दैट फंक्शन इज नेगेटिव. राइट, इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस में इमेज की बात हो जाएगी, फिर एक्स एक्सिस में इमेज. कुछ ऐसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव. ठीक है. रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ 10x अगर आपको लिखना है 0 से इन्फिनिटी, एंड डेफिनेटली अगेन बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन डेफिनेटली से दैट ओके इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड बाय क्लियरली एन इवन फंक्शन. All 6 functions are even function. Modulus of sin x, modulus of cos x, modulus of tan x, modulus of cot x, modulus of sec x, and modulus of cosec x. And finally we look for the curve modulus of cot x. Cot x is cos x by sin x. Domain is all real values excluding n pi. Cot x is a decreasing function, remains positive in the interval of 0 to pi by 2. Infinity से 0 जाता है ये. Right, will decreasing in the interval of pi by 2 to pi will be negative, but image of that function in the x axis. बहुत अप्रोक्सीमेट से बनाए ये कर्व, बहुत एग्जैक्ट नहीं होंगे. मॉडुलस ऑफ cot x, रेंज ऑफ दैट फंक्शन 0 से इन्फिनिटी, एंड पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड पाई, एंड अगेन इन इवन फंक्शन क्लियरली सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. आपने एक और बात नोटिस कर ली और वो ज़रूरी थी.
साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, ये चार फंक्शन से 2 पाई से पीरियोडिक है, tan एक्स कॉट एक्स पाई से पीरियोडिक है. When we look for the modulus functions, all 6 modulus functions, modulus functions, modulus of sin x, modulus of cos x, modulus of tan x, modulus of cot x, modulus of sec x, modulus of cosec x, all are even function. In place of x, if you keep minus x, function remains same, even functions, and at the same time all 6 are periodic functions with period pi. ये सारे के सारे पाई से पीरियोडिक है. Those functions can never be negative. किस अप्रोच के ऊपर बनाया है, किस अप्रोच के ऊपर बनाया है, इस अप्रोच के ऊपर बनाया है कि जिस इंटरवल में फंक्शन पॉजिटिव है विल रिमेन एज इट इज, लेकिन जिस इंटरवल में फंक्शन नेगेटिव होगा माइनस ऑफ एफ एक्स इमेज ऑफ दैट कर्व इन द एक्स एक्सिस. दैट्स द आइडिया बिहाइंड दैट. Now the function is y equals to fx and we'll be sketching with the help of that function y equals to f of x, we'll be sketching the function y equals to f of minus x. e to the power minus x, ln minus x and greatest integer of minus x, ये तीन functions मैंने आपसे कहा कि sketch करिएगा. तो if fx is e to the power x, देखिएगा e to the power x easily you can sketch the function. काफी बार sketch कर चुके हैं अब तक आप लोग. That's the e to the power x is x, this is fx, ठीक. When x tends to infinity, e to the power infinity tends to infinity, and when x tends to minus infinity, e to the power minus infinity tends to 0. कई बार बात हो गई. If fx is equals to e raised to power minus x, if it is e raised to power minus x, in fact ये कर्व भी हमने डिस्कस किया है during the discussion of range. Now what will happen when x tends to infinity? When x tends to infinity, e raised to power minus infinity tends to 0. And when x tends to minus infinity, it will be minus of minus infinity will become infinity, and e raised to power infinity will become infinity. Point is, this function becomes like this. Right? ठीक. What is happening? In fact, it is nothing but that function e to the power minus x is nothing but the image of the given curve. Which curve? E to the power x. ये e to the power x है, and if it is e to the power minus x, that's the image of the given function in the y axis. ये समझने वाली बात. In the previous case, we were discussing if it is fx and minus of fx is the image of that function in the x axis. It is f of x and f of minus x, image of the given curve y equals to fx in the y axis में image होगा, right? So बस इतनी सी बात है, इसमें हमारा काम हो जाता है. If it is ln of minus x, देखो if it is ln x, definitely if I say ln x, this function is defined for positive real values of x. बहुत आसानी से आप स्केच कर सकते हैं, जानते हैं, कंफर्टेबल हैं. बट इफ आई टू स्केच द कर्व ऑफ ln माइनस एक्स, आप ये मत कहिएगा सर ये तो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज व्हाट वी हैव डिस्कस दैट log इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव रियल वैल्यूज. बोले सर ये तो log माइनस एक्स हो गया है, कब डिफाइंड होगा? log माइनस एक्स की अगर आप बात करेंगे तो log माइनस एक्स इज डिफाइंड, log x is defined for positive real values. So when I say log of minus x, that means it is defined for minus x must be greater than 0, or you can say x is less than 0. So this curve would be existing. ln of minus x ये exist करेगा, किस interval में exist करेगा? For x less than 0. क्योंकि negative with negative will become positive. You are not going to say कि अरे तो exist नहीं करता, ln minus x कहाँ से आ गया? So ln minus x की जब बात आएगी, it is going to be minus 1, it will become 0. What is happening? That's the curve of ln x, that's the curve of ln minus x, image of the given function in the y axis, image of that given function in the y axis. And same is happening for greatest integer of minus x. If it is greatest integer of minus x,
You will be plotting the function of greatest integer of x first. Greatest integer of x का function आपने plot किया, and greatest integer of minus x. Take the image of that function in the y-axis. बनाइए जरा fast. Now look for greatest integer of minus x. So first we plot the curve of greatest integer of x. In between 0 and 1, it is 0. ये फंक्शन हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ठीक है ना, बड़ी आसानी से बनाया हमने, ब्लू मार्कर से जो स्केच किया दैट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स. बट इफ आई से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स इज जस्ट द इमेज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस में इमेज, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स, तो इमेज इन द वाई एक्सिस. Right, image in the y-axis. Image in the y-axis. चेक करिए, ऐसे ही बनाया ना आपने. जो ब्लैक मार्कर स्केच किया है, that's the function greatest integer of minus x. Function sketch किया it greatest integer of x and taken the image of that function in the y-axis. Y-axis में image. Now look for some interesting functions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 functions are there, and you have to sketch those functions. आपने time लिया, attempt किया, देखना जरा. fx is e रेस टू पावर मॉडुलस ऑफ x. देखो बहुत सीधा सा तरीका, बहुत आसानी सीखोगे. e रेस टू पावर मॉडुलस ऑफ x. अब मॉडुलस फंक्शन को आपने सॉल्व किया, इट इज बिकमिंग e रेस टू पावर x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड इट इज e रेस टू पावर माइनस x व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0. मतलब सर हाँ ठीक है, जानते हैं इसमें क्या खास बात है. मॉडुलस ऑफ x इज x फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x इज माइनस x फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0. इसी को प्लॉट कर दीजिए, और क्या है. When x is greater than equals to 0, that function is like e to the power x. वो फंक्शन क्या है, e to the power x. देखिए बहुत आसानी सीख जाएंगे, कुछ भी नहीं है उसमें. For x greater than equals to 0, it is e raised to power x. e raised to power x तो ऑलरेडी आप कंफर्टेबल है, और e raised to power minus x में भी कंफर्टेबल है, because that is nothing but the image of the given function in the y axis. So e to the power x. That is the function e to the power x. For x less than 0, it is e to the power minus x. बोले सर आपने पूरा बना दिया. हाँ देख रहे हैं हम लोग. e to the power minus x. That function is y equals to e to the power minus x. For x greater than equals to 0, it is e to the power x. For x greater than equals to 0. So for x greater than equals to 0, it is e to the power x. So this reason is not going to exist there. इसके समझाने के लिए मैंने आपको बनाया था. पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए इंक्लूडिंग 0, दैट्स द फंक्शन e to the power x. और फॉर x लेस देन इक्वल्स टू 0, दिस फंक्शन इज e to the power minus x. दैट्स द e to the power minus x. That's nothing but e raised to power modulus of x. And it's clearly an even function. है या नहीं even function? Clearly है बिल्कुल. In place of x, if you keep minus x, that given function remains same.
और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री साफ साफ दिखती है अपने को, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, इवन फंक्शन। इफ यू लुक फॉर द सेकेंड वन, बोर्ड पे देखिएगा प्लीज ध्यान से, मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स। देखो अब मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स, तो मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स को सॉल्व कैसे करोगे? हमने अभी जो स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड विद ऑल द मॉडुलस फंक्शंस, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबके मॉडुलस फंक्शंस हमने स्केच किए थे। तो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स फॉर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इट इज माइनस ऑफ एफ एक्स फॉर एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, राइट? व्हाट डू यू फील, कैसे बनेगा मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स? कुछ चेंज इसमें? मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स व्हेन एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये ई टू द पावर एक्स है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, ठीक? सो मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर इफ इट इज नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव लाइक इमेज ऑफ द गिवन कर्व इन द एक्स एक्सिस, लेकिन ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। सो इफ आई टॉक अबाउट मॉडुलस ऑफ ई टू द पावर एक्स विल रिमेन सेम एज ऑफ ई टू द पावर एक्स ओनली, क्योंकि दैट फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ रहे हो? Now the function is fx is equals to ln modulus of x। अब ln modulus of x, जहां मॉडुलस फंक्शन आता है ना, सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को सॉल्व कर लीजिए। लाइक कैसे करोगे आप? इट इज इक्वल्स टू ln x, कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन रुक जाइए, मॉडुलस ऑफ x log x is defined for positive real values, mod function will remain always positive but also become 0 at 0। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए, ln x for x greater than 0, बिकॉज डोमेन में 0 नहीं होगा, 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। इट इज ln x for x greater than 0 and it is ln of minus x when x is less than 0, ठीक है? क्योंकि 0 डोमेन में नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के ऊपर मॉडुलस फंक्शन, इसलिए दिक्कत नहीं है। वी कैन स्केच ln x एज वेल एज वी कैन स्केच ln माइनस x, दोनों फंक्शन हम जानते हैं। दिस इज ln x। This is ln माइनस x, ये दोनों फंक्शन बना ली ना। पॉजिटिव वैल्यूज के लिए दिस इज ln x और नेगेटिव वैल्यूज के लिए ln माइनस x। बोले सर कैसे बनाया? इमेज ऑफ द गिवन कर्व इन द y एक्सिस, ऑलरेडी अभी तो बनाया था हमने यहाँ पर। दैट द फंक्शन ऑफ ln मॉडुलस ऑफ x, क्लियरली एन इवन फंक्शन, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ये इवन फंक्शन है जो कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक? If I say fx is equals to modulus of ln x, देखो modulus of ln x, now whether this function is even or odd, yeah, nothing, none of the two, modulus of ln x, modulus of ln x क्या कहेंगे आप इसे? इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, या दोनों ही नहीं? इवन कैसे इवन हो गया? इवन ऑड के लिए जरूरी है कि इन प्लेस ऑफ एक्स इफ यू कीप माइनस एक्स एंड इफ दैट गिवन फंक्शन रिमेन्स सेम, सुनिएगा इस बात को ध्यान से, दिस इज मॉडुलस ऑफ ln x, इन प्लेस ऑफ एक्स इफ यू कीप माइनस एक्स एंड दैट फंक्शन रिमेन्स सेम। यहाँ फंक्शन कहाँ सेम रहेगा? इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप माइनस एक्स रखेंगे दैट इज मॉडुलस ऑफ ln x, इन प्लेस ऑफ एक्स अगर आप माइनस एक्स रखेंगे तो दैट विल बी डिफरेंट। ln माइनस ऑफ एक्स, यू कैन नॉट टेक माइनस साइन आउट ऑफ दैट लॉग, तो ना वो इवन है ना ऑड है, दोनों ही नहीं है, ठीक है ना? Here how to sketch this function modulus of ln x? So first we sketch the curve of ln x। अच्छा बेसिक डेफिनेशन क्या रहेगी? मॉडुलस ऑफ ln x को प्लॉट करना है तो बेसिक तो वही है जैसे मॉड साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक स्केच किया, लाइकवाइज
इट इज ln x. कब? जब ln x पॉजिटिव है. जिस इंटरवल में ln x पॉजिटिव है, जैसा कर्व है एज इट इज रहेगा. इट विल बिकम माइनस ऑफ ln x when ln x is less than equals to 0. ठीक है, ये तो ln x. दिस इज द कर्व ऑफ ln x. सो व्हेन ln x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दैट विल बी ln x. और व्हेन ln x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये तो ln x log x बनाया, इसकी हेल्प से मैं मॉडुलस ऑफ ln x बना रहा हूं. साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक बनाए थे और उसकी हेल्प से हमने मॉडुलस फंक्शन स्केच किए थे. तो जितने इंटरवल में ln x पॉजिटिव है विल रिमेन एज इट इज, जैसा था वैसा रहेगा. और जब ln x नेगेटिव है, इट विल बिकम माइनस ऑफ ln x. माइनस ऑफ ln x इज नथिंग बट द इमेज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द x एक्सिस. तो x एक्सिस में इमेज, बिकॉज मॉड फंक्शन इज देयर ना, विच इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन रिमेन्स ऑलवेज पॉजिटिव. मॉडुलस ऑफ ln x हमेशा पॉजिटिव रहेगा. 1 पे 0 बनेगा, बट ठीक है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो रहा. सो फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इट इज पॉजिटिव एज वेल एज 1 पे 0, और जितने पार्ट में नेगेटिव है. इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द x एक्सिस. ये जो ब्रांचेस हैं, ये ln x पॉजिटिव है. सुनो इस बात को, जब ln x पॉजिटिव है, दिस ब्रांच इज ln x एंड दिस ब्रांच इज माइनस ऑफ ln x. That is the function modulus of ln x. It's not an even function. You cannot say like that. Even functions are symmetric about y axis. It's not symmetric about y axis. आ रहा है समझ में? But when we say सेकेंड लास्ट पे ध्यान दीजिएगा, ln modulus of x and again mod of that. बोर्ड पे देखिएगा प्लीज. ln modulus of x. In fact that's the function ln mod x जो ऑलरेडी मैंने प्लॉट किया हुआ है. ln mod x is there. When I say modulus of ln mod x, what change you suggest here? क्या चेंज सजेस्ट करते हुए? कोई चेंज नहीं होगा. थोड़ा सोच समझ के बोले, मतलब जो भी ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया ऐसे ही. बहुत सारे कर्व से किसकी मिरर इमेज और कहाँ, इसकी क्या होता है ये इसका उसका क्या. ln modulus of x, that's the function ln modulus of x. ठीक है, तो ln modulus of x हमारे पास में है. we want modulus of ln mod x. mod function is there, function के साथ में तो will always remains positive. so this function is going to be, मैं इसी में स्केच कर दूं, आप लोग कर लेंगे दोनों अलग अलग ना. थोड़ा सा रुक जा यार भैया, लगता पहली बार कोई चीज समझ में आई ऐसा लगा. ठीक है, when I say modulus of ln mod x, that function will remain always positive. If it is positive, will remain positive, and if it is negative, it is minus of fx, image of that function in the x axis. Like that. अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि now this, yes, this is a function, even function. In सीधी सी बातें, in place of x if you keep minus x, that function remains same. Clearly symmetric, symmetric about y axis, y axis के about symmetric होगा. Now look for these two functions. fx is equals to modulus of e raised to power x minus 2. One by one we sketch the function, है ना. e raised to power x, then e raised to power minus x, and then modulus of e raised to power x minus 2. That is the function e to the power x. If it is e to the power x minus 2, e raised to power x minus 2, that curve is shifting downwards by that constant. Clear अभी आप लोगों को?
So that curve will be shifting downwards -2 से. That is e to the power x -2. हमने उस कर्व को शिफ्ट कर दिया downwards by 2. And if it is modulus of e to the power x -2, अभी क्या होगा? ये तो सिंपल है, e raised to power x -2. You are very well aware of the function fx plus a, shifting of that curve by upwards downwards by that constant. सबसे पहले ही टाइप वही डिस्कस किया था हमने. ये तो हो गया e to the power x -2. ठीक है, 0 के करस्पॉन्डिंग दैट वैल्यू विल बी 1, एंड व्हेन x टेंड्स टू -infinity दैट वुड बी टेंडिंग टुवर्ड्स -2. क्लियर है आप लोगों को? e raised to power x -2 एंड मॉड ऑफ दैट. अब जब मॉड ऑफ दैट लिखा है हमने, तो अगेन मॉड फंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू रिमेन दैट फंक्शन पॉजिटिव. आप समझिएगा, ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो जितने पार्ट में पॉजिटिव है विल रिमेन एज इट इज. सो when e to the power x, it will be e to the power x -2 when e raised to power x -2 is greater than equals to 0, and it is minus of e to the power x -2 and e raised to power x -2 less than equals to 0. एक सीधी सी बात है, जितने पार्ट में फंक्शन पॉजिटिव है विल रिमेन एज इट इज, लेकिन जितने पार्ट में या x के जितने इंटरवल के लिए फंक्शन नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा. पॉजिटिव कैसे बन जाएगा? माइनस ऑफ एफ एक्स, इमेज ऑफ द गिवन फंक्शन इन द एक्स एक्सिस में इमेज. ये आना चाहिए समझ में, अब कोई खास बात नहीं रही है ना. बना दें इसकी इमेज वाई एक्स एक्सिस में. सॉरी, दिस इज 1, दिस इज 2. कुछ ऐसा चेक करिए, ठीक है. इसी में चेंज किया मैंने, दिक्कत है कुछ? दैट इज e raised to power x -2, and when we say modulus of e raised to power x -2, when e to the power x -2 is greater than equals to 0, जैसा था वैसा रहेगा, जैसा था वैसा है. लेकिन when it is negative, this is the interval जहां पे नेगेटिव है, इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द x एक्सिस. ये पोर्शन रब कर दीजिएगा. सेम इसमें स्केच कर दिया मैंने. ये पॉइंट बता सकते हो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0. ऐसे कैसे 1,0? अरे एक्स एक्सिस पे 0,1 ऐसा कैसे हो गया? कुछ ज्यादा हो गया. My question towards you is, when this function is becoming e to the power x -2, जब मैंने बनाया था, that's the function e raised to power x -2. ये पॉइंट रिक्वायर्ड है मुझे. ये क्या पॉइंट है? दैट्स द पॉइंट वेयर दैट फंक्शन या दैट कर्व कट्स द एक्स एक्सिस, राइट. और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. देख लीजिए, y इज इक्वल टू e to the power x -2. पहले इसकी बात कर लें, फिर वो उसका मैंने इमेज बना दिया तो एक ही में कर दिया. ठीक है, e to the power x -2 एंड मॉड ऑफ दैट y इक्वल टू e to the power x -2. अब x एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है y0. समझ लीजिए इस बात को. e to the power x -2 इक्वल टू 0. यू कैन से e to the power x इज इक्वल टू 2, और यू कैन से x इज इक्वल टू log 2. तो ये जो पॉइंट है जहां पर ये कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, दैट पॉइंट इज व्हाट? log 2, (0). So this point is log 2, 0. पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो कीप y0 रखा आपने, ये y0 रखा. तो e raised to power x equals to 2 और x equals to log 2, like that. Now think about e raised to power modulus of x -1 and whole mod of that. कर सकते हैं हम इसके, जरूर कर सकते हैं.
Now the function is e to the power of x. First of all, we are going to sketch the function fx is e raised to power modulus of clear. First, we are going to discuss the function e raised to power modulus of x. Already we have discussed. It is e raised to power x when x greater than equals to 0, and it is e to the power minus x when x less than equals to 0. ये फंक्शन होगा. ठीक. When we say e raised to power x minus 1, e raised to power x minus 1, that curve is getting shifted downwards by that constant. अच्छा डाउनवर्ड शिफ्ट होगा तो कितना शिफ्ट होगा? ये 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू 1 थी, अभी 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू नहीं -1 नहीं हो पाएगी ना. 0 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू e to power 0 -1 0, तो इट इज गेटिंग शिफ्टेड डाउनवर्ड्स बाय 1 से शिफ्ट हो गया डाउनवर्ड्स. इसको भी fx ही लिख रहा हूं मैं. ठीक. 0 के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन की वैल्यू 0. नाउ 0 0 ना 1 से शिफ्ट हुआ. अच्छा, व्हेन वी पुट अ मॉडुलस साइन देयर, क्या अंतर आने वाला है? e raised to power modulus of x minus 1, and if I keep a modulus sign there, it remains same. क्योंकि इसमें डिफरेंस तो केवल तभी आएगा जब पॉजिटिव है, विल रिमेन एज इट इज. इफ इट इज नेगेटिव, विल बिकम पॉजिटिव बाय टेकिंग द इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द एक्स एक्सिस. तो ये तो पूरा फंक्शन अबाउट द एक्स एक्सिस ही है, 0 करस्पॉन्डिंग 0 है. हाँ, इसमें डिफरेंस तब होगा इफ आई आस्क यू टू प्लॉट द फंक्शन e raised to power modulus of x minus 3, लेट्स से. अगर मान लीजिए इस फंक्शन की बात करें, समझ ले, हम ये समझ रहे हो ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा. e to the power modulus of x minus 1 is this, is e to the power mod x minus 1 and whole mod of that is also going to remain same. ठीक है, अच्छी बात है. if it is e raised to power mod x minus 3 and whole mod of that, अब e to the power mod x ऑलरेडी हमने स्केच किया. if I say e to the power mod x minus 3, तो that curve is getting shifted downwards by -3. ये कर्व शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड्स बाय दैट कांस्टेंट. 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 थी, नाउ इंस्टेड ऑफ 0 करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1, 0 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हो जाएगी e raised to power 0, दैट विल बी 1 minus 3 which is -2. 3 से शिफ्ट हुआ है, सीधी सी बात है, डाउनवर्ड्स. समझ लीजिए, सारी बातें समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है, 3 से शिफ्ट होना, बाकी तो नेचर जैसा था वैसे ही रहेगा, केवल कर्व की शिफ्टिंग हुई है. e raised to power mod x is there, now it is e raised to power mod x minus 3. राइट. और अगर आपसे कोई पूछे कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कब कट कर रहा है, तो आपसे जवाब देते बनना चाहिए when this function is intersecting the x एक्सिस. तो x एक्सिस को कब इंटरसेक्ट कर रहा है? तो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कीप y 0. e to the power mod x is equals to 3, तो mod x is going to be log 3. समझ रहे हो ना आप? तो x is going to be plus minus log 3. तो हमें बहुत कंफर्टेबल है कि कहाँ क्या लिखना है. log 3, 0 माइनस log 3, 0. लेकिन ये तो बात हुई e raised to power mod x minus 3. बट इफ आई पुट अ मॉडुलस साइन देयर, अब अगर मैं बात करता हूं, क्या चेंज होने वाला है? चेंज ये होगा कि द फंक्शन जितने पार्ट में पॉजिटिव है विल रिमेन एज इट इज.
और जहां नेगेटिव है विल बिकम माइनस ऑफ एफ एक्स, इमेज ऑफ दैट फंक्शन इन द एक्स एक्सिस. समझ रहे हो ये बात? इन दैट केस दिस वुड नॉट अपीयर देयर. तो स्टेप बाय स्टेप बना लिया आपने, 3 से शिफ्ट किया और फिर उसकी इमेज, इसको हटा दीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं. क्लियर है? ये भी अलग से बना देता हूं मैं. लाइक दिस. ये e टू द पावर मॉड x माइनस 3 है और ये उसका मॉड फंक्शन. अगेन लुक फॉर सम इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ फंक्शंस इन देयर ग्राफ्स एंड विच आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी टॉपिक ऑफ कैलकुलस. विल बी डिस्कसिंग द फंक्शन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से देखिएगा. इफ आई से मैक्सिमम ऑफ x comma x square, fx is equals to maximum of x comma x square. ये पहली बार आपने इस फंक्शन को फेस किया जहां पे मैक्सिमम है. उसके बाद में विल बी डिस्कसिंग आल्सो द मिनिमम ऑफ x comma x square आल्सो. फॉर द फर्स्ट टाइम ये फंक्शंस आपके सामने आ रहे हैं, मैक्सिमम ऑफ x comma x square या मिनिमम ऑफ x comma x square. और अगेन आई एम टेलिंग यू दैट ओके इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कैलकुलस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से तो बहुत रिलेवेंट है. मैक्सिमम ऑफ x comma x square, फॉर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू प्लॉट बोथ द फंक्शंस. विच टू फंक्शंस? दो फंक्शंस है यहाँ पर. एक फंक्शन है y इक्वल टू x और दूसरा फंक्शन है y इक्वल टू x square. These two functions are there and you are going to plot those two functions simultaneously. दोनों functions को आप simultaneously plot कर लेंगे. y equals to x is simply a straight line passing through the origin having slope 1, y equal to x, and y equals to x square is nothing but a parabola opening upwards parabola having vertex 0, 0. बहुत ही साधारण से दो functions हैं, तो y equal to x और y equal to x square. You are going to plot both the functions simultaneously. लेकिन प्लॉटिंग करेक्ट होना चाहिए और वही हम सीख रहे हैं यहां पर. That is the function y equals to x there and y equals to x square. Parabola opening upwards parabola. But how to sketch here? बोला था ठीक है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0, 0, लेकिन स्केच कैसे किया जाए? बोला मैं लाइन से ऊपर बनाए नीचे बनाए कैसे क्या, ऐसा मत सोचिएगा. यू मस्ट बी कंफर्टेबल. और ये बहुत छोटा सा फंडा है जो ध्यान रखिएगा ताकि एरर नहीं हो. एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो लुक फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कि वेदर दोस टू फंक्शंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग. ये दो फंक्शंस हैं y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x स्क्वायर. ये दो फंक्शन कब कब इंटरसेक्ट करेंगे सो दैट यू विल बी गेटिंग द हेल्प इन प्लॉटिंग द कर्व्स. तो वेदर दीज टू फंक्शंस आर इंटरसेक्टिंग फंक्शंस और नॉन इंटरसेक्टिंग फंक्शंस. तो हम दोनों कर्व्स को सॉल्व कर लें. y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x स्क्वायर. बड़ी आसानी से बात बनती है. x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू 0 and 1. You are getting 2 points there where these two functions intersects. For x equals to 0 and x equals to 1. और x की वैल्यूज 0 के करस्पॉन्डिंग जो 0, 0 और 1, 1. y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो ये दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स से इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, राइट? वैसे भी कंफर्टेबल होना चाहिए कि जब आप y इक्वल टू x स्क्वायर बनाओगे, यस इट इज अ पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स पैराबोला विथ वर्टेक्स 0, 0 in between 0 and 1 for fractional values.
इफ यू रेज द पावर ऑफ दैट फंक्शन, है ना, y इक्वल्स टू x, तो y if it is x, if it is x square, if it is x cube, if it is x raised to power 4, तो आप कंफर्टेबल है ये बात समझने में कि x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, x raised to power 4 है, तो 0 से 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे, फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करने पर वैल्यू और लेस हो जाएगी, उसका क्यूब करने पर वैल्यू और लेस हो जाएगी, रेज़ टू पावर 4 करने पर वैल्यू और लेस हो जाएगी, ठीक है ना। दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये इसलिए इतनी बात कर रहे हैं कि आपने गलत ढंग से प्लॉट कर दिया, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में नहीं आया, आपने गलत ढंग से प्लॉट किया, तो क्या मैक्सिमम और क्या मिनिमम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लॉट बोथ द कर्व्स, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, साइमल्टेनियसली आपने प्लॉट किया। यू हैव टू लुक फॉर द मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर। देखिएगा, मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम का सीधा सा मीनिंग है मैक्सिमम ऑफ द टू, दो फंक्शन है, दोनों में जो जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, मैक्सिमम ऑफ द टू। तो भैया लेस देन, इफ आई आस्क यू लेस देन इक्वल्स टू 0, बहुत आसानी समझेंगे आप। फॉर लेस देन इक्वल्स टू 0, विच फंक्शन इज हैविंग द ग्रेटर वैल्यू, दैट इज y इक्वल्स टू x एंड दैट इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। किस फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है, तो सीधी सी बात है एक्स स्क्वायर, क्योंकि इट इज पॉजिटिव, ये तो नेगेटिव है, ठीक है ना। हमारा इंटरेस्ट क्या है, हमारा इंटरेस्ट है फिलहाल मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर, वी आर लुकिंग फॉर दिस। तो मैक्सिमम, so for less than equals to 0 it is x square, in between 0 and 1, 0 से 1 में this is x and this is x square, clearly x is having larger value than x square, up to 1, and as it crosses 1, x square बहुत rapidly rise करेगा, सीधी सी बात है। in that case maximum is 1। जो ब्लैक मार्कर से मैंने शेड किया, दैट्स द फंक्शन, रिक्वायर्ड फंक्शन मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड है आपको, मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर। फिलहाल जो अपना रिक्वायर्ड है उसको अगर मैं सेपरेटली बनाऊं, ये एक्स स्क्वायर, देन इट्स ए स्ट्रेट लाइन, एंड देन अगेन दैट फंक्शन, ये एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स एन एक्स स्क्वायर, राइट। इसको और एक्सप्लेन करते हुए मैक्सिमम एक्स, आई एम गोइंग टू राइट हियर, it is x square for x less than equals to 0, it is y equals to x for 0 to 1। एक्चुअली 0 और 1 दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए 0 इंक्लूड किया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन इट इज अगेन एक्स स्क्वायर फॉर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, दिस इज द फंक्शन। आ रहा है समझ में? That is the maximum of the two functions. Likewise, maximum of 3 function or 4 functions could be there. You are going to plot all the 4 functions simultaneously, and you are going to locate the region in which that function is having the greater values. That's the maximum of x, x square. If I ask you the range of that function, अगर मैं आपसे range पूछता हूँ इसकी, can you give me the range of maximum of x, x square? Range of maximum of x, x square. तो रेंज, तो आपने ब्लैक मार्कर से जो शेड किया वो उस कर्व को देखोगे तो 0 से लेकर इंफिनिटी। क्वेश्चन कुड बी डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दैट फंक्शन। सुन लेना इस बात को, कैसे ये रिलेवेंट है, पढ़ आप फंक्शंस में रहें, लगेगा एरियाज तक। वो क्वेश्चन कुड बी डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर। अब कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तो आता है आपको, बट यू आर नॉट अवेयर कि फंक्शन क्या है, f(x) इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, एक्स स्क्वायर। तो किस मतलब का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू स्केच द फंक्शन, स्केच करोगे एंड देन यू विल बी गेटिंग द आइडिया। ओके,
Okay, this function is continuous everywhere, and we'll be checking the differentiability of that function at 2.0 as well as 1. वो दो डाउटफुल पॉइंट्स होंगे, बात करेंगे. फंक्शन कुड बी टू डिसाइड अबाउट द लोकल मैक्सिमा टू लोकल मिनिमा. फंक्शन कुड बी टू इंटीग्रेट, द क्वेश्चन कुड बी टू इंटीग्रेट दैट फंक्शन फ्रॉम द इंटरवल -1 to 4. डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल हो सकता है. Question could be in terms of find out the area bounded by the function fx is equals to maximum of x comma x square from -1 to 4. तो ये सारे सवाल बन गए, पर बनेंगे कब? केवल तभी जब ये बन पाएगा ग्राफ, तब. और ये तो हम फंक्शंस में सीख रहे हैं ना, इसीलिए फंक्शंस लंबा हो जाता है कि भैया इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये सवाल आपको फिर से डबल से आएगा. आपको एरिया में या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में डायरेक्टली हम प्लॉट करेंगे, फिर बार बार थोड़ी ना एक्सप्लेनेशन की बात होना चाहिए. Likewise, if I to plot the minimum of the two, जो ब्लैक मार्कर से स्केच किया, that's the maximum of. If I to locate the minimum of the two, तो जो मैक्सिमम नहीं हो मिनिमम है, जिसकी लीस्ट वैल्यू है, तो मिनिमम ऑफ द टू, दिस इज द मिनिमम, जो ब्लू मार्कर से शेड कर रहा हूं मैं. राइट, ये था मैक्सिमम. Minimum of x comma x square, it's a straight line first, then it's a curve from 0 to 1, and then again straight line. x है, x square है और x है. If I ask you range of minimum of x comma x square, anybody can comment on the range? Range, x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑल रियल वैल्यूज. ठीक, आप लिख सकते हैं फॉर लेस देन इक्वल्स टू 0, फंक्शन इज x, फॉर 0 to 1. ठीक है. Now you have to plot the function fx is equals to maximum of 2 minus x, 2 and 1 plus x. Now there are three functions there, 2 minus x, 2 and 1 plus x. First of all we have to plot all the three functions simultaneously. तीनों straight lines हैं, तीनों straight lines हैं, उसमें दिक्कत नहीं. y equal to 2 minus x, y equal to 2 and y equal to 1 plus x. और एटलीस्ट अब तक आप स्ट्रेट लाइन स्केचिंग में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए. इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस y0, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट x, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट x0 और x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y0 रख के पॉइंट्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से बात कर सकते हैं. और कुछ फंक्शन से तो डायरेक्टली स्केच होंगे, उसमें इतना समय नहीं लगना चाहिए. इफ y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. देखते जरा, क्योंकि द ओनली पॉइंट इज कि अगर आप लाइन से स्केच ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर आगे की तो बात ही गलत होगी पूरी. वैसा मत करिएगा. That's y equals to 2. देख लीजिए, लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस. y equals to 1 plus x. If it is 1 plus x, so 1 is the intercept there and y equals to x plus 1. Slope of that line is 1 10 45 degree. वैसे भी समझा दिया x एक्सिस और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट्स के थ्रू, लेकिन ये तो 1 plus x में कहाँ दिक्कत होना चाहिए. That is y equals to 1 plus x. x एक्सिस को मीट कर रहा है, y0 रखा तो -1 पर. These two are intersecting at which point? x की किस वैल्यू के लिए दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, समझ लीजिए आप, ये बहुत जरूरी बात है. y equals to 1 plus x and y equals to 2.
ये दोनों कब इंटरसेक्ट कर रही हैं? तो ये कब इंटरसेक्ट कर रही है? x की वैल्यू मतलब y इक्वल टू 1 प्लस एक्स और y इक्वल टू 2 को सॉल्व कर लो। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 या x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रही, ठीक है। नाउ इट इज 2 minus x, 2 is the intercept there, minus 1 is the slope there. x एक्सिस पर इंटरसेप्ट y 0 तो 2 पर, ठीक। अच्छा, these two lines, that is y equals to 2 minus x, तो y equals to 2 minus x और y equals to 2 कब इंटरसेक्ट होगा? y equals to 2 minus x और y equals to 2, हाँ 0,2 है, लेकिन I want 2 minus x and 2 this line। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड y equals to 2 minus x and y equals to 1 plus x, these two lines, ये दो लाइंस का इंटरसेक्शन, दिस पॉइंट। क्लैरिटी आ जाएगी, उससे आपको समझ में आएगा कि यार कौन लाइंस किसको कहां इंटरसेक्ट कर रही है। तो 2 minus x is equals to 1 plus x, x is equals to हाफ। मनीष भाई बहुत सीरियसली लेने की जरूरत है, ये बहुत हंसी मजाक की बात है ही नहीं कहीं से कहीं तक भी। ये तीनों लाइंस को आपने स्केच किया, प्रॉपर्ली स्केच किया अलॉन्ग विद देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कौन सी लाइन किसको कहां कैसे कट कर रही है। प्रॉपर प्लॉटिंग होगी तभी आगे की बात बन पाएगी, अदरवाइज एरर ही होगी उसमें। नाउ यू टू लुक फॉर द मैक्सिमम ऑफ द थ्री। अब ध्यान से देखें जरा, मैक्सिमम ऑफ द थ्री, maximum of the three lines are there, 1 plus x, y equals to 2 and y equals to 2 minus x। मैक्सिमम डिसाइड करना y की वैल्यू कब ग्रेटर है। कभी आप अटक जाओ तो जस्ट ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जिस रीजन के लिए आप कंफ्यूज हैं, y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया आपने, these are the three values of y, and definitely you can very well observe that okay, that this is the greatest value, so y equals to 2 minus x is the clearly the greater for which interval, तो for less than equals to 0। इस इंटरवल में जहां पर भी आप चेक करोगे तो y की वैल्यू ग्रेटर होगी। पॉइंट इज मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम। अब for less than equals to 0 it is 2 minus x। for 0 to 1, बोर्ड पे देखिएगा ध्यान से, for in the interval 0 to 1, this is y equals to 2, this is y equals to 2 minus x, this is y equals to 1 plus x, and I hope now you can very well understand कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। जरा सा भी कंफ्यूजन है, लाइन ड्रॉ कर ली, देख लिया, इसकी जरूरत लगना नहीं चाहिए, कहीं पटक गए तो आप समझ में आएगा। ओके, दीज थ्री वैल्यूज, ओके सर ठीक है, y equals to 2 is having the larger value there, and for greater than equals to 1, for this is the value of x, for x greater than equals to 1, that y equals to 1 plus x। You can definitely write there, क्या लिख सकते हो आप, that function is 2 minus x for x less than equals to 0, it is 2 for 0 to 1, and it is 1 plus x, इक्वल टू साइन इसलिए मार्क किए हुए हैं कि इक्वल टू साइन पे दोनों वैल्यू सेम है। व्हेन आई से x इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू 2 है और इस पे भी 2 है, इसलिए इक्वल टू साइन मार्क किया मैंने। दैट्स द फंक्शन, राइट, पहले समझ लीजिएगा। और दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, if I ask you the range of that function, can you tell me the range of that function please? If I ask you the range,
रेंज अगर मैं पूछ लेता हूं इस फंक्शन की, मैक्सिमम ऑफ द थ्री, मैक्सिमम ऑफ द थ्री रेंज, तो भैया ये फंक्शन जो है ये इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा है। मिनिमम वैल्यू इज 2 देयर, 2 टू इन्फिनिटी। रेंज मतलब y की वैल्यूज की बात कर रहा है, 2 टू इन्फिनिटी। ये इसलिए बहुत रिलेवेंट होगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, आप ऑब्जर्व करोगे ओके दिस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, दीज आर द टू शार्प एजेस, नॉट डिफरेंशिएबल एट 2.0 and 1, डायरेक्टली लिख के आओगे आप, लिखना नहीं, डायरेक्टली टिक करके आओगे। डिस्कस द कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्ट बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ द कर्व इटसेल्फ, कहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, प्रोवाइडेड इफ यू स्केच द कर्व प्रॉपर्ली। राइट, दैट इज द मैक्सिमम ऑफ द थ्री। इफ आई आस्क यू द मिनिमम ऑफ द थ्री, तब क्या करते? अगर मैं मिनिमम आपसे पूछ लेता, मिनिमम ऑफ द थ्री, इफ इट इज मिनिमम ऑफ द थ्री, ब्लू मार्कर से स्केच कर रहा हूं मैं, मिनिमम ऑफ द थ्री, पहले समझ लीजिए फिर बाद में नोट कीजिएगा। मिनिमम ऑफ द थ्री, जिसकी वैल्यू लीस्ट है तीनों में, up to this point of intersection, which point of intersection? For 1/2, for x less than equals to 1/2, that function is y equals to 1 plus x, and after 1/2 जो तीनों में मिनिमम वैल्यू, that is this। ठीक है, for x less than equals to half, that function is 1 plus x, and for x greater than equals to half, that function is 2 minus x. And if I ask you the range, can you comment on the range please? रेंज अगर मैं पूछ लेता हूं, रेंज मतलब x की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, तो ये तो माइनस इन्फिनिटी, लेकिन अप टू व्हाट? तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, वन बोले सर माइनस इन्फिनिटी तो 1/2 मत बोलना, x की वैल्यू नहीं, y पूछा रेंज। ये 1/2 के करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है दादा, ये पूछा गया है। तो 1/2 के करस्पॉन्डिंग 1 + 1/2 3/2। तो रेंज अगर पूछेगा तो आप जरूर जवाब दोगे माइनस इन्फिनिटी टू 3/2। एरर मत करिएगा, रेंज मतलब x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू। लेकिन ऐसा तभी सब कुछ हो पाएगा प्रोवाइडेड अगर आपका स्केचिंग प्रॉपर है। तो लाइंस की स्केचिंग, साइमल्टेनियस स्केचिंग एंड टू डिसाइड मैक्सिमम और मिनिमम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सजेस्टेड यू यस्टरडे क्लास अटेंड करना जरूरी। विल बी डिस्कसिंग मेनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट।